If you're an employer in India, listen up. Managing your team's retirement funds, well, it's not what it used to be. We've seen a massive shift. What was once just routine admin work has morphed into this high-stakes digital arena, where pretty much every single click you make carries serious legal weight. So, let's just dive right into this new reality of EPFO compliance. You know, this quote right here, it just hits the nail on the head. It really gets to the heart of this new game. The days of passively filling out some forms and sending them off, they're long gone. The system now demands that you are proactive, that you're engaged in real time. You're not just filing paperwork anymore. You are actively governing your employees' financial futures. And the change is, wow, it's stark when you see it laid out like this, side by side. We've literally moved from a paper-influenced, reactive world to a completely digital-first ecosystem. The EPFO's unified portal is now the single source of truth, and it's built for active monitoring and data validation. It doesn't just passively receive your information, it scrutinizes it in near real time. So, to make sense of all of this, we're going to break it down into 4 key areas. First, we'll look a little deeper at this new reality of the EPFO. Second, we'll talk about how to build your digital foundation. Third, we'll get into mastering that monthly cycle. And finally, we'll cover the really high stakes. We're talking both the risks and the opportunities. All right, let's get into our second section, building your digital foundation. I want you to think of this as like laying the concrete for your entire compliance structure. These aren't just suggestions or best practices. They are the absolute non-negotiable first steps for every single employer out there. So there are 3 foundational pillars you have to get right. First, you have to register on the Unified Shram Suvidha portal, or the USSP. This is what establishes your company's legal identity. And you have to remember the principle, once covered, always covered. That means even if your employee count drops later, the obligation remains. Second, you file Form 5A, the return of ownership. This is so critical. It's your legal declaration of who, by name, is responsible for compliance. And third, you register your digital signature, or DSC. These are literally the keys to your digital kingdom, and every single action you take with them is legally binding. And it's so important to understand the legal weight of that DSC. It is not just a login tool. It's an irrefutable legal instrument. Every time you use it, you're creating a permanent, legally binding digital trail. And hey, just a quick pro tip, getting the DSC to actually work can be tricky. The system often requires a very specific older version of Mozilla Firefox. We're talking version 48.0 and 32-bit Java. It's a tiny technical detail, but it has huge operational importance. Okay, so with that foundation set, let's get into the heart of the operations with our third section, mastering the monthly cycle. This is all about the recurring rhythm of money, data, and some very, very strict deadlines. First up, the money. The employee contributes a pretty straightforward 12% of their wages to their provident fund. Now, the employer also contributes 12%, but it's split. 8.33% goes to the pension scheme, and the other 3.67% goes into the provident fund. But here is the crucial detail you have to know: the wage ceiling. The pension and insurance contributions are capped at a maximum wage of 15,000 rupees. That's true even if the employee earns way more. That detail is absolutely essential for getting your calculations right. Beyond the money, there's the data. And KYC is the absolute cornerstone of this entire system. Without the employee's UN linked to their Aadhaar and bank details, and, here's the kicker, approved by you, the employer, they are completely locked out of all online services. They can't file claims, they can't check their balances, they can't access their own money. This really elevates your role to that of a pivotal gatekeeper and, frankly, a legally accountable data validator. So this all brings us to a key question, right at the heart of this whole monthly cycle. What is the single most important compliance activity that you have to perform each and every month? And the answer is filing the Electronic Challan Cum Return, or ECR. This is it. This is the one and only way to report wages and remit contributions. And that deadline, the 15th of the following month, is set in stone. It is absolutely non-negotiable. In fact, you know, a common best practice is to actually file by the 10th. Why? Because it gives you a 5-day buffer to fix any data errors or technical glitches without triggering an automatic default. This leads us perfectly into our fourth and final section, high stakes. And here, we're going to contrast the really severe consequences of getting this wrong with some of the surprising new opportunities that can arise from getting it right. Let's start with the risks, and let's not beat around the bush.
The potential penalty for failing to remit the employee's share of PF contributions, it isn't just a fine. It can include imprisonment for up to 3 years. So, why is it so severe? Well, it all comes down to a legal concept called criminal breach of trust. You see, the moment you deduct that PF share from an employee's salary, the law says you are holding that money in trust. So if you fail to deposit it, it's not just a statutory default, it's a criminal offense. And this liability can actually pierce the corporate veil, which means the directors you listed on that Form 5A can be held personally liable. But, and this is a big but, there is a critical nuance here. In a pretty notable case involving Zycom Sauce Private Limited, the Bombay High Court made a really important distinction. The court found that if the default is corrected and the delay was due to genuine challenges, not dishonest intent, it might not meet the high bar for a criminal charge. So what does that mean? It means that while financial penalties for any delay are basically certain, your actions after a default can be a powerful defense against the most severe legal consequences. Okay, now let's pivot from all that risk to the reward. There's a new government scheme, PMVBRY, that actually turns compliance into a strategic tool. Here's the deal. By creating new jobs, employers can get their PF contribution reimbursed. It also provides a subsidy for first-time employees. Now, what's the catch? Well, to be eligible, you're required to furnish accurate gross wages in your ECR, starting from August 2025. And just like that, meticulous compliance isn't just about avoiding penalties anymore. It's about directly reducing your hiring costs. This all leads us to a really powerful conclusion. In this new digital era, EPFO management is no longer just some back-office task. It's truly an essential component of sound corporate governance, and it's a tangible way you demonstrate your commitment to your employees' welfare. So, I'll leave you with this final thought to really consider. In this new landscape of serious risks and exciting rewards, is your organization's approach to EPFO compliance just a cost center, or are you starting to treat it like the strategic asset it has now become? नमस्ते। APFO कंप्लायंस ये शब्द सुनते ही पहले शायद दिमाग में सिर्फ एक रूटीन का काम आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज के दौर में ये भारत में हर बिजनेस के लिए एक बहुत ही ज़रूरी स्ट्रेटेजिक फंक्शन बन गया है। ये सिर्फ नियम कानून मानने की बात नहीं है, बल्कि ये किसी भी कंपनी की आर्थिक सेहत, उसकी कानूनी स्थिति और यहाँ तक कि उसकी शाख से भी सीधा जुड़ा हुआ है। EPFO का पैमाना कितना बड़ा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जरा इस रकम के बारे में सोचिए, 17 लाख करोड़ रुपए। EPFO दुनिया के सबसे बड़े सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स में से एक है। ये 6.9 करोड़ से भी ज्यादा मेंबर्स के लिए इतने बड़े फंड को मैनेज करता है। ये रकम तो कई देशों की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है, और यही वजह है कि इसका कंप्लायंस इतना ज्यादा मायने रखता है। और यहीं पर एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता के रोल में एक जबरदस्त बदलाव आया है। अब एम्प्लॉयर सिर्फ एक पैसिव एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है जो चुपचाप काम करता रहे, बल्कि वो देश के विकास में एक एक्टिव डिजिटल गवर्नर और एक भरोसेमंद पार्टनर बन गया है। तो आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी बदलाव के इर्द गिर्द घूमेगी कि इस नए डिजिटल इकोसिस्टम में एम्प्लॉयर का रोल आखिर बदला कैसे है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले हम कंप्लायंस की नई हकीकत को समझेंगे, फिर डिजिटल दुनिया में कदम रखने के लिए ज़रूरी पहले कदमों पर बात करेंगे। उसके बाद लोगों और पेमेंट से जुड़े रोज़मर्रा के काम देखेंगे, फिर जानेंगे कि अगर कोई गलती हुई तो उसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और आखिर में ये देखेंगे कि कैसे एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हिस्सा, एक नई कंप्लायंस रियलिटी। आज सब कुछ ऑनलाइन है। इसका मतलब यह है कि हर ट्रांजैक्शन का एक डिजिटल निशान बनता है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसी पगडंडी है जो साफ साफ दिखाती है कि नियमों का पालन हुआ है या नहीं, और इसी वजह से अब निगरानी करना बहुत आसान हो गया है। दूसरा हिस्सा, डिजिटल बुनियाद रखना। तो इस डिजिटल दुनिया में आने के लिए कुछ बहुत ही जरूरी और बुनियादी कदम उठाने पड़ते हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या हैं। EPFO इकोसिस्टम में कानूनी तौर पर एंट्री के लिए ये 3 काम करने ही पड़ते हैं। पहला, अपनी कंपनी या संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाना। दूसरा, फॉर्म 5A भरकर ये बताना कि कंपनी का मालिक कौन है। और तीसरा, डिजिटल ऑथेंटिकेशन सेटअप करना, यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या ई-साइन। यहां एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत काम करता है, एक बार कवर हमेशा कवर। मतलब अगर किसी कंपनी में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं तो उस पर EPF एक्ट लागू हो जाता है।
और अगर बाद में कर्मचारियों की संख्या 20 से कम भी हो जाए, तब भी वो कवरेज हमेशा के लिए बना रहता है। और ये पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब यूनिफाइड श्रम सुविधा पोर्टल यानी यूएसएसपी पर ऑनलाइन ही होती है। अब बात करते हैं फॉर्म 5A की। ये कोई मामूली फॉर्म नहीं है, ये जवाबदेही की कानूनी बुनियाद है। यही वो डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि कंपनी के कंप्लायंस के लिए पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से कौन जिम्मेदार है, चाहे वो डायरेक्टर हो या पार्टनर। असल में यही वो कागज है जो कंपनी के पर्दे को हटाकर सीधे मालिक तक पहुंचता है और व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करता है। और आखिर में डिजिटल सिग्नेचर, ये सिर्फ कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है। डीएससी या ई साइन का हर इस्तेमाल कानूनी तौर पर एक बाइंडिंग डिक्लेरेशन होता है। और यहीं पर एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा पेंच है। ये बहुत हद तक आपके कंप्यूटर के टेक्निकल सेटअप पर निर्भर करता है। कई बार गलत ब्राउज़र या जावा का गलत वर्जन आपके पूरे कंप्लायंस के काम को ठप कर सकता है। तीसरा हिस्सा, कोर ऑपरेशंस। चलिए, डिजिटल बुनियाद तो रख दी, अब बात करते हैं उन कामों की जो हर महीने करने होते हैं, जहां एम्प्लॉयर की दोहरी भूमिका होती है। एक, डेटा को वेरीफाई करने वाले की, और दूसरा, पैसे जमा करने वाले की। केवाईसी में एम्प्लॉयर के रोल में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। पहले क्या होता था, बस डेटा एंट्री कर दी। लेकिन अब बात पूरी तरह बदल गई है। अब एम्प्लॉयर एक कानूनी रूप से जवाबदेह डेटा वैलिडेटर है। इसका मतलब है कि जब कोई एम्प्लॉयर किसी कर्मचारी के केवाईसी को अप्रूव करता है, तो वो कानूनी तौर पर उस डेटा की सच्चाई की गारंटी ले रहा होता है। अब एम्प्लॉयर ही डेटा की शुद्धता का गेटकीपर है। अब आते हैं पैसे वाले हिस्से पर। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एम्प्लॉयर का कुल कंट्रीब्यूशन लगभग 13% बनता है। ये पैसा 3 अलग अलग स्कीमों में बंटता है: एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड (EPF), एम्प्लॉय पेंशन स्कीम (EPS) और एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDILE). ये टेबल समझाती है कि ये पूरा हिसाब किताब कैसे काम करता है। देखिए, कर्मचारी की सैलरी से 12% कटकर ईपीएफ में जाता है। एम्प्लॉयर भी 12% देता है, लेकिन वो बट जाता है। 8.33% जाता है पेंशन स्कीम में और बाकी का 3.67% कर्मचारी के ईपीएफ खाते में। इसके अलावा एम्प्लॉयर को इंश्योरेंस और एडमिन चार्ज के लिए लगभग 1% और देना होता है, तो कुल मिलाकर ये लगभग 13% हो जाता है। और हाँ, पेंशन और इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15,000 रुपये तक की सैलरी पर ही कैलकुलेट होता है। ये सारा लेन देन हर महीने ईसीआर प्रोसेस के जरिए होता है, जो कि फाइलिंग और पेमेंट का इकलौता तरीका है। हर महीने की 15 तारीख तक एक टेक्स्ट फाइल अपलोड करके पेमेंट करनी होती है, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि ये काम 10 तारीख तक ही निपटा लिया जाए, ताकि अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसे सुधारने का वक्त मिल सके। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां मामला थोड़ा, या कहें कि काफ़ी गंभीर हो जाता है। कंप्लायंस में चूक की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। इसमें सिर्फ पैसों का जुर्माना ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी शामिल है। अगर पेमेंट में देरी होती है तो 2 तरह के जुर्माने लगते हैं। पहला है पीनल इंटरेस्ट, जो सेक्शन 7Q के तहत लगता है। ये एक तरह का मुआवजा है जो फ्लैट 12% सालाना की दर से लगता है। इसे माफ़ नहीं किया जा सकता। दूसरा है पीनल डैमेजेस, जो सेक्शन 14B के तहत लगता है। ये एक सज़ा है और ये बकाया रकम का 100% तक हो सकता है। हाँ, इसे कुछ खास मामलों में माफ़ किया जा सकता है। लेकिन पैसों के जुर्माने से भी बड़ा एक और खतरा है, और वो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी आपराधिक विश्वासघात। ये वो स्टेज है जहां जिम्मेदारी कंपनी से हटकर व्यक्तिगत और क्रिमिनल लेवल पर चली जाती है। तो सबसे बड़ा जोखिम क्या है? आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड की धारा 405 और 406 तब लगती हैं जब एम्प्लॉयर कर्मचारी की सैलरी से पीएफ का हिस्सा तो काट लेता है, लेकिन उसे जमा नहीं करता। इसे सिर्फ एक सिविल गलती नहीं, बल्कि एक क्रिमिनल ऑफेंस, एक आपराधिक जुर्म माना जाता है, और इसकी सजा 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकती है। और ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी किसकी बनती है? सीधा उन डायरेक्टर्स या पार्टनर्स की जिनका नाम फॉर्म 5A में लिखा हुआ है। लेकिन ये सब सिर्फ जोखिम और सजा के बारे में नहीं है। चलिए अब कहानी का रुख बदलते हैं, देखते हैं कि कैसे इस कंप्लायंस को एक जोखिम से एक अवसर में बदला जा सकता है, और कैसे एक एम्प्लॉयर ईपीएफओ के साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है। तो सवाल यही उठता है, कंप्लायंस क्या है? एक बोझ या एक मौका? चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक मौका बन सकता है, जिससे अच्छा मैनेजमेंट भी होता है और आर्थिक फायदा भी। प्रयास पहल इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसका मकसद है कि कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट वाले दिन ही पेंशन पेमेंट ऑर्डर मिल जाए। इसमें एम्प्लॉयर का रोल एक
प्रोएक्टिव रिटायरमेंट ऑनबोर्डिंग पार्टनर का हो जाता है। और इसके लिए करना क्या है? बस एक छोटा सा बदलाव, रिटायर होने वाले महीने का पीएफ कंट्रीब्यूशन उस महीने की 15 तारीख से पहले जमा करना है। ये एक छोटा कदम है, पर यह दिखाता है कि एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी की कितनी परवाह करता है। और यहाँ पर देखिए कि कैसे नई सरकारी स्कीम्स कंप्लायंस को एक स्ट्रेटेजिक मौके में बदल रही हैं। 1 अगस्त 2025 से आने वाली पीएम विकसित भारत रोजगार योजना जैसी स्कीमें नई हायरिंग की लागत को कम करने के लिए इंसेंटिव देती हैं। लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए एक शर्त है, ईसीआर में बिल्कुल सही ग्रॉस सैलरी की जानकारी देनी होगी। यहाँ नियम का पालन करना सीधे सीधे एक बिजनेस को फायदा पहुंचा रहा है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है, किसी भी संस्था का कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या सिर्फ जुर्मानों से बचने का एक तरीका है, या फिर ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक संपत्ति है जो बिजनेस के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है? चुनाव, बचाव और अवसर के बीच का है। नमस्कार। आज हम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की दुनिया को जरा गहराई से समझने वाले हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ नियमों और फॉर्म्स की बात नहीं है, बल्कि ये समझना है कि 2025 तक आते आते एक नियोक्ता होने के मायने कैसे बदल गए हैं। हाँ, काफी कुछ बदला है। हमारे पास ईपीएफओ के दिशा निर्देश हैं, कानूनी विश्लेषण है और हाल के अपडेट्स भी हैं। तो कोशिश रहेगी कि इसमें से जो सबसे काम की बातें हैं वो निकल कर आएं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ईपीएफओ कंप्लायंस मतलब नियमों का पालन अब सिर्फ एक रूटीन काम नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक जरूरत बन गया है। स्ट्रेटेजिक जरूरत कैसे? देखिए, अगर लापरवाही हुई तो उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और वो कीमत सिर्फ पैसों में नहीं होती। मतलब फाइनेंशियल पेनल्टी तो है ही, लेकिन व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी भी बन सकती है। अच्छा, और दिलचस्प बात यह है कि ईपीएफओ खुद भी अब नियोक्ताओं को सिर्फ नियम मानने वाला नहीं समझता, वो उन्हें राष्ट्र निर्माण में मूल्यवान भागीदार और एक विश्वासी साथी के तौर पर देख रहा है। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा, विश्वासी साथी। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये सिर्फ कहने की बात है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए, जो डिजिटल सिस्टम्स आए ना, उससे सब कुछ इतना पारदर्शी हो गया है कि हर कदम का, हर लेन देन का एक रिकॉर्ड बन रहा है। अच्छा, तो आज हम यही देखेंगे कि ये बदलाव असल में क्या है, ये नई तकनीकें क्या चुनौतियां ला रही हैं, क्या मौके दे रही हैं, और नियोक्ता कैसे इस जटिल माहौल में सही तरह से चल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ईपीएफओ कितना बड़ा है ये समझना जरूरी है। ये भारत की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। करोड़ों कर्मचारी हैं इसमें। हाँ, करोड़ों। ये उनके लिए भविष्य निधि यानी ईपीएफ, पेंशन यानी ईपीएस और जीवन बीमा यानी ईडीएलआई, इन सब का प्रबंधन करता है। बात कर रहे हैं लगभग 7 करोड़ लोग हैं जो हर महीने पैसा जमा करते हैं। 7 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और फंड का साइज देखिए, 17 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। बहुत बड़ा सिस्टम है ये। और इस विशाल सिस्टम में, जैसा आपने कहा, नियोक्ता की भूमिका पिछले कुछ सालों में काफी बदली है। पहले शायद ज्यादातर कागजी काम होता था, लेकिन अब नियोक्ता एक तरह से एक्टिव डिजिटल गवर्नर जैसा है। वो जो यूनिफाइड एम्प्लॉयर पोर्टल है या यूनिफाइड श्रम सुविधा पोर्टल यूएसएसपी, इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने सब कुछ बदल दिया है। ये अब सत्य का एकल स्रोत है, ऐसा कह सकते हैं। हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, चाहे वो कंट्रीब्यूशन जमा करना हो या कर्मचारी का डेटा अपडेट करना हो, सबका एक डिजिटल रिकॉर्ड बनता है, एक निशान छूट जाता है। अच्छा, मतलब ईपीएफओ अब सिर्फ फाइलिंग लेकर रख नहीं लेता? बिल्कुल नहीं, वो अब रियल टाइम में निगरानी कर रहा है, मॉनिटरिंग चल रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब चूक की गुंजाइश बहुत कम है और पारदर्शिता बहुत ज्यादा। सही पकड़ा आपने। इसी वजह से जो बुनियादी कंप्लायंस है उन्हें समझना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो शुरुआत पंजीकरण से करते हैं। ये किन कंपनियों के लिए अनिवार्य है? देखिए, मोटा मोटा नियम यह है कि जिस भी कंपनी या संस्था में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, और इसमें हर तरह के कर्मचारी शामिल हैं, ठेके वाले भी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट वाले भी? हाँ बिल्कुल। तो 20 या ज्यादा कर्मचारी होने पर ईपीएफओ के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कुछ खास इंडस्ट्रीज के लिए ये लिमिट कम भी हो सकती है। और ये होता कैसे है? ऑनलाइन? हाँ, ये ऑनलाइन यूएसएसपी पोर्टल के जरिए होता है, और जैसे ही आपके कर्मचारी 20 या उससे ज्यादा होते हैं, उसके 1 महीने के अंदर ये करना होता है। पैन नंबर जरूरी है इसके लिए। और एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो वो हमेशा के लिए रहता है, ऐसा सुना है मैंने। मतलब अगर बाद में कर्मचारी कम हो गए तो? हाँ बिल्कुल, यही है। एक बार कवर हमेशा कवर का सिद्धांत। एक बार आप ईपीएफओ के दायरे में आ गए तो फिर आप हमेशा दायरे में रहेंगे, भले ही बाद में कर्मचारियों की संख्या 20 से कम क्यों ना हो जाए। अच्छा, तो ये एक स्थायी कानूनी जिम्मेदारी बन जाती है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक फॉर्म भरने जैसा नहीं है, ये एक लंबी चलने वाली कमिटमेंट है। वैसे एक बात और है। हाँ, 20 से कम कर्मचारियों वाले भी चाहें तो अपनी मर्जी से ईपीएफओ में शामिल हो सकते हैं, वॉलंटरी कवरेज ले सकते हैं। ओके। अब रजिस्ट्रेशन के साथ ही एक फॉर्म 5A का जिक्र आता है। ये क्या है? सिर्फ स्वामित्व का रिटर्न? ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये बहुत अहम दस्तावेज है। ये उन लोगों की पहचान करता है जो कानूनी तौर पर कंपनी के कंप्लायंस के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब? कौन लोग? मालिक, डायरेक्टर, पार्टनर, वो लोग जो कंपनी चलाते हैं। और सबसे जरूरी बात, इसमें जो जानकारी दी गई है उसे हमेशा अपडेट रखना होता है। अपडेट रखना होता है जैसे?
मान लीजिए कंपनी का पता बदल गया या बैंक अकाउंट बदल गया या कोई डायरेक्टर बदल गया, तो ये जानकारी तुरंत ऑनलाइन अपडेट करनी होती है। अगर ऐसा नहीं किया तो वो अपने आप में एक उल्लंघन है और इसका गंभीर परिणाम भी हो सकता है। हाँ। आपने व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात की थी। हाँ बिल्कुल, अगर कंपनी कोई बड़ा उल्लंघन करती है, खासकर कर्मचारियों के पैसे को लेकर, मान लीजिए पीएफ का पैसा काटा और जमा नहीं किया, तो इस फॉर्म में जिन लोगों के नाम हैं उन पर सीधी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, इसी को कहते हैं कॉर्पोरेट पर्दे को भेदना, मतलब कंपनी के पीछे जो असली जिम्मेदार लोग हैं उन तक पहुंचना। यहीं से शायद वो डिजिटल सिग्नेचर, डीएससी या आधार वाला ई साइन, इनकी भूमिका अहम हो जाती होगी। बिल्कुल सही जगह पहुंचे आप। ये डीएससी या ई साइन सिर्फ लॉगिन करने के लिए नहीं है, तो ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी डिजिटल चाबियां हैं। नियोक्ता पोर्टल पर लगभग हर महत्वपूर्ण काम, जैसे मासिक रिटर्न यानी ईसीआर फाइल करना हो, हाँ। या किसी कर्मचारी की केवाईसी को मंजूरी देनी हो, या किसी कर्मचारी की नौकरी छोड़ने की तारीख, जिसे डीओई कहते हैं, वो डालनी हो, ये सब इन्हीं डिजिटल सिग्नेचर से प्रमाणित होता है। अच्छा, मतलब इनके बिना काम ही नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। और इनके इस्तेमाल से किया गया हर काम ये माना जाता है कि वो नियोक्ता ने ही किया है, उसकी आधिकारिक घोषणा है। तो बाद में ये कहना कि मुझे नहीं पता था या ये मैंने नहीं किया, ये लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो फिर तो इनकी सुरक्षा और सही इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया। बेहद जरूरी। और सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, तकनीकी जरूरतें भी पूरी करनी होती हैं, जैसे सही ब्राउजर इस्तेमाल करना, जावा का सही वर्जन होना। अगर ये सब नहीं हुआ तो काम अटक सकता है। हाँ, काम रुक जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण परिचालन विफलता बिंदु बन सकता है। तो ये डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव है, कह सकते हैं। इसी डिजिटल नींव पर फिर कर्मचारी का पूरा ईपीएफओ सफर मैनेज होता है। इसका पहला पड़ाव है यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। इसमें हाल में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं ना? हाँ, अगस्त 2025 से एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब जो नए कर्मचारी हैं वो यूमंग ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब चेहरे की पहचान वाली तकनीक, FAT जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके अपना यूएएन खुद जनरेट करेंगे। खुद जनरेट करेंगे? तो इसमें नियोक्ता की भूमिका क्या रही? क्या अब उन्हें यूएएन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नए कर्मचारियों के लिए यूएएन बनाने की जिम्मेदारी अब कर्मचारी पर चली गई है मोटे तौर पर। नियोक्ता का काम अब यह है कि कर्मचारी ने जो यूएएन जनरेट किया है उसे अपनी कंपनी के रिकॉर्ड से लिंक करे। अच्छा। और हाँ, अगर कोई कर्मचारी पहले से कहीं काम कर रहा था और उसके पास यूएएन है, जो कि अक्सर होता है, तो नियोक्ता को उसी पुराने यूएएन को लिंक करना है, नया नहीं बनाना है। क्यों नया, क्यों नहीं? ताकि कर्मचारी का सारा फंड और उसकी सर्विस हिस्ट्री एक ही जगह, एक ही यूएएन में जुड़ी रहे, पोर्टेबिलिटी बनी रहे। ओके, इसके लिए वो फॉर्म 11 भरवाते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, नए कर्मचारी से फॉर्म 11 लेना अनिवार्य है, जिसमें वो खुद बताता है कि उसका पहले से पीएफ खाता है या नहीं। यूएएन के बाद आता है केवाईसी, अपने ग्राहक को जाने। इसे आपने डिजिटल सिस्टम की आधारशिला कहा था, ऐसा क्यों? देखिए, बिना केवाईसी अप्रूव हुए, जिसमें मुख्य रूप से आधार और बैंक खाता होता है, कर्मचारी ईपीएफओ की ज्यादातर ऑनलाइन सेवाओं का फायदा उठा ही नहीं सकता। जैसे? ना तो वो पैसा निकाल सकता है, ना ट्रांसफर कर सकता है, क्लेम ही नहीं कर पाएगा। तो केवाईसी के बिना यूएएन एक तरह से अधूरा है, इसलिए यह आधारशिला है। और इस केवाईसी को अप्रूव करने में नियोक्ता की भूमिका बहुत अहम है, निर्णायक है। कर्मचारी अपनी जानकारी खुद भी अपलोड कर सकता है या नियोक्ता भी दर्ज कर सकता है, लेकिन आखिरी मंजूरी वो नियोक्ता को अपने डीएससी या ई साइन से ही देनी होती है। अच्छा। अगर नियोक्ता के पोर्टल पर केवाईसी अप्रूवल के लिए पेंडिंग दिख रहा है, वो अलर्ट जैसा दिखता है, तो उसे तुरंत पूरा करना चाहिए, क्योंकि इसमें देरी का सीधा असर कर्मचारी पर पड़ता है। वो अपना पैसा इस्तेमाल नहीं कर पाता। यहाँ एक दिक्कत और आती होगी, आधार से डेटा मैच ना होने की, नाम की स्पेलिंग या जन्मतिथि। हाँ, ये एक आम समस्या है। कर्मचारी का नाम, जन्मतिथि और लिंग जैसा आधार कार्ड में है, बिल्कुल वैसा ही ईपीएफओ के रिकॉर्ड में होना चाहिए। जरा सा भी अंतर हुआ तो केवाईसी लिंक नहीं होगी। तो फिर क्या करना होता है? कर्मचारी को या तो पहले आधार में सुधार करवाना पड़ता है या फिर ईपीएफओ रिकॉर्ड में सुधार के लिए अर्जी देनी होती है, और उस अर्जी को भी नियोक्ता ही वेरीफाई करके आगे बढ़ाता है। तो हाँ, इसमें थोड़ी माथापच्ची हो सकती है कभी कभी। कर्मचारी के ईपीएफओ सफर का एक और जरूरी पड़ाव है नौकरी छोड़ने पर उसकी निकास तिथि डालना, डेट ऑफ एग्जिट या डीओई। ये कितना जरूरी है? ये नियोक्ता का एक अनिवार्य कर्तव्य है, मतलब करना ही करना है। जैसे ही कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है, चाहे वो इस्तीफा दे या उसे निकाला जाए या वो रिटायर हो, नियोक्ता को तुरंत ईपीएफओ पोर्टल पर उसकी डीओई अपडेट करनी होती है, और उसे भी डीएससी साइन से प्रमाणित करना होता है। और अगर इसमें देरी हो जाए तो, मान लीजिए एचआर टीम भूल गई या देर कर दी, तो वो कर्मचारी अपना पीएफ का पैसा निकाल नहीं पाएगा, नहीं उसे अगली कंपनी में ट्रांसफर कर पाएगा। अब सोचिए कर्मचारी को कितनी परेशानी होगी, वो शिकायत भी कर सकता है। हाँ, जाहिर है। इसलिए डीओई मार्किंग को कर्मचारी की फाइनल सेटलमेंट प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा बनाना चाहिए। इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। ये भी नियोक्ता की वो जो विश्वासी साथी वाली भूमिका है, उसका हिस्सा है। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, पैसों पर। योगदान और मासिक रिटर्न यानी ईसीआर। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए योगदान की दरें क्या हैं? ब्याज दर तो 8.25% तय हुई है। हाँ, दरें वही हैं। कर्मचारी अपने वेतन का 12% ईपीएफ में देता है, नियोक्ता भी कुल 12% देता है, लेकिन वो बढ़ जाता है। बढ़ जाता है कैसे? 12% में से 8.33% हिस्सा पेंशन स्कीम ईपीएस में जाता है, लेकिन ये सिर्फ 15,000 रुपए तक के वेतन पर लागू होता है। अच्छा। और बाकी का 3.67% कर्मचारी के ईपीएफ खाते में जाता है। तो कर्मचारी के खाते में उसका 12% और नियोक्ता का 3.67%, कुल 15.67% जमा होता है ईपीएफ में।
और पेंशन वाला अलग? हाँ, वो 8.33% पेंशन फंड में जाता है। इसके अलावा नियोक्ता को बीमा EDLI के लिए भी 0.50% देना होता है और कुछ प्रशासनिक शुल्क भी लगते हैं। EPF के लिए 0.50% और EDLI के लिए बहुत मामूली सा शुल्क है। यहाँ ये वेतन की परिभाषा बड़ी पेचीदा हो गई है, खासकर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद। उसका क्या असर हुआ है? हाँ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि PF योगदान के लिए वेतन का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता DA ही नहीं है। तो फिर क्या है? वो सारे भत्ते जो लगभग सभी कर्मचारियों को मिलते हैं बिना किसी खास शर्त या परफॉर्मेंस के, वो भी वेतन का हिस्सा माने जाने चाहिए PF के लिए। अच्छा, तो मतलब सिर्फ बेसिक प्लस DA पर PF काटना काफी नहीं है? शायद नहीं। ये देखना होगा कि बाकी भत्ते किस प्रकृति के हैं। अब कंपनियां किस भत्ते को शामिल कर रही हैं, किसे नहीं। ये ऑडिट में बहुत बारीकी से देखा जाता है। अगर गलत कैलकुलेशन हुई तो बड़ा बकाया बन सकता है। और वो जो 15,000 रुपए की वेतन सीमा है, वो पेंशन, EPS और बीमा EDLI के लिए है? हाँ, EPS और EDLI का योगदान 15,000 रुपए प्रति माह की वेतन सीमा पर ही कैलकुलेट होता है। इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए नियम अलग हैं। अगर किसी की सैलरी ज्यादा है और वो चाहता है कि पूरे वेतन पर PF कटे? हाँ, तो उसके लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को मिलकर एक संयुक्त आवेदन देना होता है। इसे पैरा 26(6) का ऑप्शन कहते हैं। क्या ऐसे भी मामले हैं जहां EPS में पैसा नहीं जाता? हाँ है। जैसे अगर कोई कर्मचारी 58 साल का हो जाता है तो उसका पेंशन योगदान बंद हो जाता है। वो 8.33% हिस्सा भी फिर उसके EPF खाते में ही जाने लगता है। अच्छा। और भी कुछ खास परिस्थितियां हैं, जैसे 1 सितंबर 2014 के बाद अगर कोई नया कर्मचारी 15,000 से ज्यादा सैलरी पर ज्वाइन करता है तो कुछ शर्तों के तहत वो पेंशन स्कीम का मेंबर नहीं बनता। और कुछ खास मामलों में जैसे छोटी कंपनियां या बीमार उद्योग, PF की दर 12% की जगह 10% भी हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं ECR पर, इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न। ये हर महीने करना होता है? हाँ, ये मासिक कंप्लायंस का मुख्य तरीका है और अब यही एकमात्र तरीका है। कोई कागजी रिटर्न नहीं चलता। इसमें करना क्या होता है असल में? इसमें नियोक्ता को हर महीने एक तय फॉर्मेट में टेक्स्ट फाइल बनानी होती है। उस फाइल में सभी कर्मचारियों के वेतन और उनके हिस्से और नियोक्ता के हिस्से के योगदान का पूरा ब्यौरा होता है। फिर इस फाइल को नियोक्ता पोर्टल पे अपलोड किया जाता है। सिस्टम उसे चेक करता है। अगर सब सही है तो एक TRRN जनरेट होता है, टेम्परेरी रिटर्न रेफरेंस नंबर। TRRN? हाँ, फिर इसी TRRN का इस्तेमाल करके ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। तो पहले रिटर्न फाइल होता है, फिर पेमेंट होती है। ESR फाइल करने और पेमेंट करने की आखिरी तारीख अगले महीने की 15 तारीख है। जैसे जनवरी का ESR और पेमेंट 15 फरवरी तक हो जानी चाहिए। ठीक है। लेकिन हमारी सलाह हमेशा यही रहती है कि इसे 10 तारीख तक ही कर लेना चाहिए। पहले क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने 15 का इंतजार किया और फाइल अपलोड करते वक्त कोई एरर आ गया या डेटा में गड़बड़ी निकली या पोर्टल ही ठीक से नहीं चल रहा, तो आपके पास सुधार करने का समय नहीं बचेगा, पेमेंट लेट हो जाएगी। हाँ, ये बात तो है। तो 10 तक अपलोड कर दें ताकि कोई दिक्कत हो तो उसे 15 तक ठीक करके पेमेंट कर सकें। रिस्क नहीं लेना चाहिए। और अगर समय पर भुगतान नहीं हुआ तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं। क्या है वो जोखिम और दंड? हाँ, नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। सीधे तौर पर 2 तरह के वित्तीय दंड लगते हैं। पहला है धारा 7Q के तहत ब्याज। ब्याज कितना? ये देरी के हर दिन के लिए 12% सालाना की दर से लगता है, सिंपल इंटरेस्ट। और ये कॉम्पनसेटरी है, मतलब हर्जाना है देरी का। इसे माफ नहीं किया जा सकता, ये तो देना ही पड़ेगा। ओके, 12% ब्याज। और दूसरा है धारा 14B के तहत लगने वाला दंडात्मक हर्जाना, पेनल्टी या डैमेजेस कह लीजिए। ये सजा के तौर पर लगाया जाता है। ये कितना होता है? इसमें हाल ही में बदलाव हुआ है। 14 जून 2024 के बाद की चूकों के लिए इसे सरल कर दिया गया है। अब ये सीधा 1% प्रति माह यानी 12% सालाना। अच्छा, ये भी 12% सालाना? हाँ, पर ये पेनल्टी है। पहले स्लैब में होता था 5% से 25% तक, जो काफी ज्यादा हो सकता था। पुरानी चूकों पर अभी भी वो पुरानी दरें लागू हो सकती हैं, लेकिन नई चूक के लिए 12% सालाना की पेनल्टी है। ये तो हुए पैसों के दंड, लेकिन बात इससे भी आगे बढ़ सकती है, कानूनी कार्रवाई या क्रिमिनल एक्शन तक। हाँ, और असल चिंता की बात वही है। वित्तीय दंड तो हैं ही, लेकिन EPFO के पास और भी कड़े कदम उठाने के अधिकार हैं। जैसे? अब वो निरीक्षण नोटिस भेजते हैं सीधे पोर्टल पर। अगर समय पर जवाब नहीं दिया तो कानूनी कार्रवाई शुरू हो सकती है। EPFO बकाया वसूलने के लिए बैंक खाते फ्रीज कर सकता है, कंपनी की संपत्ति कुर्क कर सकता है। अरे बाप रे, यहाँ तक कि कंपनी के जो देनदार हैं उनसे सीधे वसूली कर सकता है। और बहुत गंभीर मामलों में नियोक्ता को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। गिरफ्तारी भी? हाँ, EPF एक्ट के तहत मुकदमा भी चल सकता है, जिसमें जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। और सबसे गंभीर शायद वो आपराधिक विश्वासघात वाला मामला है। बिल्कुल, वो सबसे गंभीर है। ये IPC की धारा 405, 406 के तहत आता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये कब लगता है? ये तब लगता है जब नियोक्ता ने कर्मचारी की सैलरी से PF का हिस्सा तो काट लिया, हाँ, लेकिन उसे EPFO में जमा नहीं कराया। हाँ, मतलब कर्मचारी का पैसा अपनी जेब में रख लिया या कहीं और इस्तेमाल कर लिया। इसे कानूनन गबन माना जाता है। और इसकी सजा? 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करता है। मतलब कंपनी पर नहीं, बल्कि कंपनी पर तो होगी ही, लेकिन साथ ही उन डायरेक्टर्स या मालिकों पर भी जिनकी जिम्मेदारी फॉर्म 5A में लिखी है। उनके खिलाफ पर्सनल क्रिमिनल केस बन सकता है। ये तो वाकई बहुत ही गंभीर बात है। क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? अगर गलती हो गई, मान लीजिए कैश फ्लो की दिक्कत थी, आपने ज़िकॉम मामले का जिक्र किया था। हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ज़िकॉम मामले में एक बहुत अहम बात कही थी।
कोर्ट ने कहा कि अगर कंपनी ने गलती पकड़ में आने या एफआईआर दर्ज होने से पहले ही बकाया जमा कर दिया था। अच्छा, पहले ही? हाँ, और ये साबित नहीं होता कि पैसा रोकने के पीछे कोई बेईमान इरादा था, मतलब मेंस रिया जिसे कहते हैं, जानबूझकर धोखा देने की नीयत। अगर ये साबित नहीं होता तो आपराधिक कार्रवाई रद्द की जा सकती है। तो ये इस बात पर जोर देता है कि अगर गलती हो भी जाए तो उसे फौरन सुधारना कितना जरूरी है, और अगर देरी हुई है तो उसके कारणों का सही रिकॉर्ड रखना भी महत्वपूर्ण है। तो मतलब अनुपालन सिर्फ दंड से बचना नहीं है, बल्कि ये कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना भी है। बिल्कुल। इस लिहाज से दावों और ट्रांसफर में नियोक्ता की क्या भूमिका रहती है? देखिए, यहाँ नियोक्ता की भूमिका बहुत सक्रिय और महत्वपूर्ण है। पहला काम तो यही है कि वो ये सुनिश्चित करे कि 100% कर्मचारियों की केवाईसी पूरी हो, ताकि वो ऑनलाइन क्लेम कर सकें। हाँ, ये तो हमने बात की थी। फिर जब कर्मचारी को जरूरत पड़ती है, मान लीजिए बीमारी के लिए या घर खरीदने के लिए या बच्चों की शादी पढ़ाई के लिए एडवांस चाहिए, तो उन दावों को प्रोसेस करने में मदद करना। ट्रांसफर क्लेम, जब कर्मचारी नौकरी बदलता है, को समय पर प्रोसेस करना। और सबसे संवेदनशील स्थिति, अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पीएफ, पेंशन और बीमा EDLI का पैसा दिलवाने में पूरी मदद करना। ये नियोक्ता की एक बड़ी नैतिक और प्रक्रियात्मक जिम्मेदारी है। EPFO की एक प्रयास पहल भी है शायद, जो इसी दिशा में है। उसका क्या मकसद है? हाँ, प्रयास पहल। इसका लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है कि कर्मचारी जिस दिन रिटायर हो उसी दिन उसे पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO मिल जाए। उसी दिन? ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब नियोक्ता इसमें सक्रिय भूमिका निभाए। ये पहल असल में नियोक्ता की भूमिका को बदल देती है। अब वो सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं है, बल्कि सक्रिय सेवानिवृत्ति ऑनबोर्डिंग पार्टनर है। तो इसमें नियोक्ता को क्या खास करना पड़ता है? उन्हें जो कर्मचारी अगले कुछ महीनों में रिटायर होने वाले हैं, उनकी पहले से पहचान करनी होती है। EPFO इसके लिए वेबिनार भी करता है। फिर उनका सारा डेटा जांचना होता है कि सब कुछ सही है या नहीं। उनका पेंशन फॉर्म 10D समय पर भरवाने में मदद करनी होती है। और कुछ? हाँ, सबसे बड़ा बदलाव यह है कि रिटायरमेंट वाले महीने का PF कंट्रीब्यूशन एडवांस में जमा करना होता है, और ECR भी उसी महीने की 15 तारीख से पहले फाइल करना होता है। एडवांस में? ये तो बड़ा बदलाव है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि प्रयास ऊपर से देखने में तो कर्मचारी की सुविधा लगती है, लेकिन ये असल में नियोक्ताओं पर एक तरह का दबाव भी है कि वो रिटायरमेंट से ठीक पहले कर्मचारी का सारा रिकॉर्ड, सारा डेटा बिल्कुल दुरुस्त कर लें, कोई कमी ना रहे। अच्छा, एक तरह का छिपा हुआ एनफोर्समेंट। हाँ, कह सकते हैं। अब एक और अहम सवाल, ठेका श्रमिकों का क्या? अगर ठेकेदार PF जमा नहीं करता तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की? बिल्कुल, अंतिम जिम्मेदारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी मुख्य नियोक्ता की ही होती है। कानून साफ कहता है कि अगर ठेकेदार अपने कर्मचारियों का PF जमा करने में चूक करता है तो मुख्य नियोक्ता को वो पैसा भरना पड़ेगा। तो मुख्य नियोक्ता क्या कर सकता है इससे बचने के लिए? इसीलिए EPFO ने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल बनाया है। अच्छा। इसके जरिए मुख्य नियोक्ता अपने सभी ठेकेदारों को सिस्टम में लिंक कर सकता है। वो देख सकता है कि ठेकेदार समय पर PF जमा कर रहा है या नहीं, और अगर नहीं कर रहा तो मुख्य नियोक्ता के पास अधिकार है धारा 8A के तहत कि वो ठेकेदार के बिल से PF का बकाया पैसा काटकर सीधे EPFO में जमा करा दे। इससे वो अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है। ये तो बहुत जरूरी टूल है फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयज के लिए। हाँ, बिल्कुल, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं 2025 के रेगुलेटरी माहौल की तरफ। इसमें एक बड़ा मुद्दा रहा है उच्च पेंशन का विकल्प। इसमें नियोक्ता की क्या भूमिका रही? हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये विकल्प खुला था कि कर्मचारी अपनी पूरी सैलरी पर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। चूंकि ये कर्मचारी और नियोक्ता का संयुक्त विकल्प था। अच्छा, जॉइंट ऑप्शन। हाँ, इसलिए नियोक्ता का सत्यापन इसमें बहुत जरूरी था। उन्हें सालों पुराने पेरोल रिकॉर्ड खंगालने पड़े। ये साबित करना पड़ा कि कर्मचारी के ऊंचे वेतन पर वाकई PF कटा था या नहीं। ये तो मुश्किल काम रहा होगा। बहुत मुश्किल। कई नियोक्ताओं के लिए ये एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती बन गया। रिकॉर्ड ढूंढना, वेरीफाई करना, इसीलिए इसकी समय सीमा भी बार बार बढ़ानी पड़ी। आखिरी तारीख शायद 31 जनवरी 2025 थी। और अब कुछ नई प्रोत्साहन योजनाएं भी आई हैं, जैसे PMVBRY। ये क्या है और इनका कंप्लायंस से क्या लेना देना है? PM विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY ये अगस्त 2025 से लागू हुई है। इसका मकसद है नई नौकरियां पैदा करने वाले नियोक्ताओं को आर्थिक मदद देना। कैसे? इसमें सरकार कुछ शर्तों के तहत नए कर्मचारियों के PF योगदान का कुछ हिस्सा या कभी-कभी पूरा हिस्सा खुद वहन करती है कुछ समय के लिए। इससे कंपनियों पर नई भर्ती का बोझ कम होता है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपने कहा इसका कंप्लायंस से लेना देना है। हाँ, और यही बात इसे रणनीतिक बनाती है। जुलाई 2025 में एक सर्कुलर आया। उसके मुताबिक इस योजना का लाभ लेने के लिए नियोक्ताओं को अगस्त 2025 से अपने मासिक ECR में कर्मचारी का सटीक सकल वेतन यानी ग्रॉस सैलरी बताना अनिवार्य कर दिया गया है। सकल वेतन मतलब पूरी सैलरी? हाँ, पूरी ग्रॉस सैलरी। पहले शायद कुछ कंपनी सिर्फ वही हिस्सा दिखाती थी जिस पर PF कटता था, लेकिन अब पूरा ग्रॉस वेतन बताना होगा। ऐसा क्यों? शायद योजना की पात्रता तय करने के लिए, जो कि 1 लाख रुपए प्रति माह तक के सकल वेतन वाले कर्मचारियों के लिए है। लेकिन इसका मतलब यह है कि अब EPFO कंप्लायंस सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं रही, ये सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का एक गेटवे भी बन गया है। हाँ, ये तो अनुपालन को एक अवसर बना देता है। बिल्कुल, अगर आप सही से कंप्लायंस कर रहे हैं तो आपको फायदा भी मिल सकता है। 2024 में एक माफी योजना यानी एमनेस्टी स्कीम भी आई थी। उसका क्या था? हाँ, वो एक मौका था उन नियोक्ताओं के लिए जो पहले कभी चूक कर चुके थे।
मतलब जिन्होंने समय पर पैसा जमा नहीं कराया था और उन पे भारी भरकम डैमेजेस लग गए थे। तो उन्हें क्या राहत मिली? उन्हें कहा गया कि अगर वो मूल बकाया चुका देते हैं तो उन पर जो दंडात्मक हर्जाना डैमेजेस लगा है उसका बड़ा हिस्सा माफ कर दिया जाएगा, शायद 100% तक भी, और कानूनी कार्रवाई से भी राहत मिलेगी। ये सिस्टम को साफ करने और पुराने मामले निपटाने का एक प्रयास था। इनके अलावा सिस्टम में और भी कई छोटे बड़े बदलाव हुए हैं हाल में। हाँ, कई सुधार हुए हैं जिनसे प्रक्रियाएं आसान और तेज हुई हैं। जैसे ऑटो क्लेम सेटलमेंट का दायरा बढ़ाया गया है। ऑटो क्लेम मतलब कुछ खास तरह के क्लेम जैसे बीमारी के लिए एडवांस लेना अब 1 लाख तक, या घर खरीदने, शादी, पढ़ाई के लिए एडवांस, ये अब कुछ शर्तों के तहत ऑटोमेटिक तरीके से बिना किसी अफसर के देखे सिस्टम द्वारा ही पास हो जाते हैं। पैसा जल्दी मिल जाता है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? शर्त यह है कि कर्मचारी का डेटा बिल्कुल साफ, सत्यापित और सटीक होना चाहिए। केवाईसी पूरी होनी चाहिए, बैंक खाता सही होना चाहिए, तभी ऑटो क्लेम काम करेगा। और पेंशन भुगतान के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली CPPS जनवरी 2025 से शुरू हुई है, जिससे पेंशन समय पर और बिना परेशानी के मिले। प्रोफाइल में अगर कोई गलती है, जैसे नाम या जन्मतिथि में, तो उसे ठीक कराने के लिए जो जॉइंट डिक्लेरेशन देना होता है, उसकी प्रक्रिया को भी जनवरी 2025 के सर्कुलर से आसान बनाया गया है। और वो फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी FAT का अनिवार्य होना। हाँ, जैसे हमने UN के बारे में बात की थी, अगस्त 2025 से नए UN बनाने या एक्टिवेट करने के लिए यूमंग ऐप पर FAT अनिवार्य हो गया है। इसका क्या असर हो रहा है? देखिए, सुरक्षा तो इससे बढ़ती है, फ्रॉड कम होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर चुनौतियां भी हैं। खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना नहीं जानते, उनके लिए UN एक्टिवेट करना मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये तो एक बड़ी दिक्कत हो सकती है। इससे भर्ती प्रक्रिया धीमी हो सकती है। नियोक्ताओं को शायद इसमें कर्मचारियों की मदद करने के लिए कोई सिस्टम बनाना पड़े। तो कुल मिलाके अगर हम सारी बातों को समेटें तो तस्वीर ये उभरती है कि EPFO अनुपालन अब पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गया है, डिजिटल हो गया है और रणनीतिक भी हो गया है। बिल्कुल। नियोक्ता की भूमिका सिर्फ नियम पालन करने वाले की नहीं रही, बल्कि सिस्टम को चलाने में एक जिम्मेदार भागीदार की हो गई है। डेटा की सटीकता, समय पर काम करना, ये सब पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रयास जैसी पहल या PMVBRY जैसी योजनाएं दिखाती हैं कि सिस्टम लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है। लापरवाही के जोखिम बहुत गंभीर हैं, खासकर वो आपराधिक विश्वासघात वाला पहलू। लेकिन दूसरी तरफ अगर नियोक्ता सक्रिय रहें, जानकारी रखें, नियमों को समझें और तकनीक का सही इस्तेमाल करें, तो वो इन बदलावों को बोझ समझने के बजाय अपने फायदे में बदल सकते हैं। और शायद अच्छे आंतरिक नियंत्रण और कर्मचारियों को भी इस बारे में शिक्षित करना जरूरी है। बहुत जरूरी है। इंटरनल कंट्रोल्स मजबूत होने चाहिए और कर्मचारियों को भी उनके अधिकारों और प्रक्रियाओं के बारे में पता होना चाहिए। मुझे लगता है अनुपालन की एक अच्छी संस्कृति बनाना सिर्फ सजा से नहीं बचाता, बल्कि ये कंपनी की साख भी बनाता है, कर्मचारियों का भरोसा जीतता है और शायद अच्छी प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने में भी मदद करता है। बिल्कुल, ये गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी हिस्सा है। और यहाँ एक विचार छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। हाँ, जरूर। जैसे जैसे EPFO और ज्यादा डिजिटल और इंटीग्रेटेड हो रहा है, और साथ ही वो जो नई सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 है, उसके भी लागू होने की संभावना है, तो क्या हम भविष्य में नियोक्ता की भूमिका को और बदलते हुए देखेंगे? मतलब किस तरह का बदलाव? क्या नियोक्ता सिर्फ कर्मचारी के PF और पेंशन तक ही सीमित रहेगा, या उसके समग्र वित्तीय कल्याण मतलब फाइनेंशियल वेलनेस में एक ज्यादा सक्रिय सलाहकार की भूमिका निभाएगा, जैसे निवेश, बीमा, रिटायरमेंट प्लानिंग वगैरह में? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या नियोक्ता एक फाइनेंशियल वेलनेस पार्टनर बनेगा भविष्य में? ये देखना दिलचस्प होगा। इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।